President of the Goa Council of Ayurvedic and other allied Indian systems. Respected dignitaries, our chief guest for today, Shri Dr. Pramod Sawant, Honorable Acharya Balkrishnan Ji, today's keynote speaker, Managing Director, Patanjali Yogpeeth, Shri Sadanand Tanawde's honor for today. Managing Director, Professor P.K. Prajapati, Director, All India Institute of Ayurveda, GCCI President, Shri Dr. Shekhar Sarkar, Director and Chief Consultant at Manipal Hospital, Deputy Director, Ayush. Visit Goa 2037 and have brought this first of its kind summit to life. Unveiled, we mark not just the launch of a document, but the beginning of a movement, one that nurtures preventive healthcare. What is important is that cancer, my specialty is cancer, so I will speak about cancer. Cancer in Goa as well as in rest of India is much less than what it is in the West. So there is something good about it. To give exact numbers, in Goa it is about 90 per 1 lakh population per year, and this number in United States is 370 per 1 lakh population. So almost 3 or 4 times more than what we have. But good part of it is almost 70% of our cancer is preventable, and lot of prevention comes out of Ayurveda, our lifestyle. And I personally feel that we should have pride in what we have. Imagine that 100 number or 90 number can be reduced by 2/3 by following what we have been following for last so many years, what our ancient traditions and knowledge tells us as it is in Ayurveda. While talking to the Chief Minister as well as Swamiji, it just stumbled upon me that the intestinal cancer is quite common in this part of the country, which is not very common in many other parts because of the amount of non-vegetarian diet that we have. It's not bad to have it, but one non-vegetarian with little vegetables in it, by the side there is a koshimbir by the side of it, and there is spices. All that improves the outcome to a great extent and reduces cancer. So there is traditional goodness that needs to be brought in. This kind of conference I find is of great importance because all of us, if we have problem, we run to an allopathic area. I am an allopathic doctor. We go to an allopathic place. Why does that happen? Why can't we just stick to our own traditional medicine? And the reason is very simple. We need to have data which supports the solidness with which our medicines can cure. And it is for this purpose I had requested the Chief Minister, and he had readily agreed that we should have a combination wherein an allopathic specialist and an Ayurvedic specialist sits across the table to decide what is best, documents that the results are excellent, those results published, we will put our own medicine on the pedestal. I very strongly feel in today's medicine that I practice in allopathy, a small benefit costs lakhs of rupees. And that is where the problem is. Our medicine is cheaper, it is effective, and we need to prove it. It is as good as what the West is. I have huge pride in being Indian and in Indian tradition of medicine. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it is my proud privilege to welcome you all to the All India International Ayurveda Wellness Expo and Summit, a global conference celebrating India's timeless science of healing and holistic well-being. Ayurveda reminds us, swasthasya swastha rakshanam aturasya vikara prashanam, to preserve the health of healthy and to alleviate the ailments of the diseased. This profound principle lies at the very heart of today's gathering. As the world increasingly looks towards natural, preventive and sustainable systems of healthcare, Ayurveda
naturopathy, yoga, and combined and inclusive practices stand not as an alternative, but as a combined and a complete way of life, tested by time and validated by experience. This summit brings together visionaries, researchers, practitioners, policymakers, and industry leaders from across the globe, united by a shared purpose to take Indian system of medicine and wellness from ancient wisdom to global relevance. Today we are deeply honored by the presence of Param Pujya Shri Balakrishna Acharya Ji. Acharya Ji is not only a towering figure in the revival and global propagation of Ayurveda, naturopathy and yoga, but also a living embodiment of the values it teaches us: discipline, simplicity, service and dedication to humanity. Through his relentless efforts in research, foundation, education and indigenous innovation, he has played a historic role in bringing Ayurveda from the pages of classical texts into the daily lives of millions. Acharya Ji, your vision has inspired a generation to reconnect with India's traditional knowledge systems with pride and scientific rigor. It is a matter of great honor and gratitude for all of us to welcome you amidst us today. We extend to you our warmest and most respectful welcome. Other than this, we have our guest speakers. We have amongst us our Lok Sabha member, Shri Narendra Savekar Ji. We have lot of experts coming from different fields, not only from Ayurveda, but physiotherapy, naturopathy and yoga, as well as allopathy. So this is a kind of an integrated platform that has been created, and Government of Goa has given a complete support towards this summit. So my great welcome to you all on behalf of Goa Council of Ayurvedic and other allied Indian systems of medicine and the organizing team. With these words, I once again welcome all the distinguished guests and participants and wish you all every success in this summit. We look forward to having a great experience over coming 3 days. Thank you one and all, and have a great day. Jai Gomantak, Jai Ayurveda. इस मंच पर आयुर्वेद की परंपरा से जिन्होंने अपने जीवन को जोड़ा, आयुर्वेद और सनातन जिनके हृदय में बसता है, जो लोगों को परंपराओं से जोड़ करके सरल और सहज रूप से वो रोग मुक्त रहें, वो समृद्धि को प्राप्त करें, स्वास्थ्य को प्राप्त करें, ऐसी भावनाओं से परिपूर्ण है जो युवा है, यशस्वी है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी। मुझे तो इसलिए भी ज़्यादा खुशी है, वैसे तो डॉक्टर प्रमोद सावंत लिखने पर ये हमारे वैद्य जी हैं, तो पहले पहचान जो है वो कभी छूटता नहीं। कभी कभी मैं कहता हूँ हम कितना भी काम कर लें, पर आचार्य बालकृष्ण को लोग पहले वैद्य के रूप में जानते, बाकी सब बाद में। तो हमें गर्व है और हमारा सौभाग्य है। बहुत ही विद्वान, ऊर्जावान, सरल, विनम्र ऐसे आदरणीय श्री सदानंद जी जो राज्यसभा के MP हैं, यहाँ मंच पर हैं। और आदरणीय हमारे प्रोफेसर, हमारे वैद्य जी भी हैं ये, और हमसे बड़ा प्रेम है और हमें खुशी है कि अभी डायरेक्टर के रूप में आयुर्वेद के जो हमसे उसमें आप सेवा दे रहे हैं, आदरणीय PK प्रजापति जी। और यहाँ पर हमारे मंच पर आदरणीय यतीन्द्र मलारकर जी और आदरणीय विजय सक्सेना जी यहाँ पर हैं, उनका मैं करता हूँ। और आदरणीय श्री V कंदवेलु जी और आदरणीय जिनको अभी हमने सुना पद्मश्री डॉक्टर राजेंद्र जी यहाँ पर हैं। और इन सब के आयोजना में आदरणीय श्री V कंदवेलु जी मुख्य सचिव यहाँ पर हैं। हाँ जी, और मंच पर बाकी आदरणीय बहन जी हैं, और सबके सूत्रधार आदरणीय बहन हमारी स्नेहा भागवत जी, जिनके प्रयास से
ये सब आयोजना में ये इतना सुंदर रूप दिखाई दे रहा है और मेरे मंच के सम्मुख सभी हमारे प्रतिष्ठित सम्मानित बंधु भगिनी और अनेक प्रांतों से, स्थानों से और देश के विभिन्न भागों से पधारे हुए सभी भाई बहन, पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए हमारे पतंजलि योग समिति, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय अनुसंधान सहित अनेक संस्थानों से पधारे हुए बंधु और भगिनी, आयुर्वेद सर्वाधिक प्राचीन परंपरा में से एक परंपरा है चिकित्सा के क्षेत्र में। बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी चिकित्सा विधाएं इस दुनिया में आई और गई। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमने पाया पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 965 हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं। 965 चिकित्सा एक तरह से परंपराएं हैं। यदि हम बात करें चिकित्सा विधा की, जिसके अंदर चिकित्सा सिद्धांत होता है, उनको हम ट्रीटमेंट सिस्टम कहते हैं। हीलिंग प्रैक्टिसेस यद्यपि बहुत ज़्यादा है, ट्रीटमेंट सिस्टम दुनिया में सिर्फ 9 है। मॉडर्न यदि एलोपैथिक को और होम्योपैथिक को जोड़ते हैं तो 11 हो जाते हैं। तो पूरी दुनिया में 11 ही पद्धतियाँ हैं। और उसमें बड़ी बात क्या है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर उन 11 पद्धतियों में से आप ये मानिए कि 6 पद्धतियाँ हमारे देश के अंदर हैं। जैसे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, स्वारिंपा, आपने देखा 1, 2, 3, 4। इसके साथ साथ में योगा नेचुरोपैथी, वह आयुर्वेदा का ही एक पार्ट है। उसके बाद में होम्योपैथिक भी भारत में है और एलोपैथिक भी है। नहीं है सिर्फ आपका इजिप्शियन मेडिसिन, ग्रीक का मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन और आपका कोरियन और जापानीज मेडिसिन। इतनी को छोड़ करके सब कुछ इस देश में है। यानी जिस देश ने पूरी दुनिया को चिकित्सा विज्ञान से जोड़ा, पूरी दुनिया की पद्धतियाँ हमारी पद्धति से प्रभावित हुई। यह कार्य पतंजलि बड़े रूप में काम कर रहे हैं। बहुत इसके ऊपर हम रिसर्च का काम कर रहे हैं। लगभग 500 से ज़्यादा रिसर्च साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो पूरी प्रामाणिकता के साथ हम ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उनका मूल यदि है तो वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद से सारी विधाओं का प्रादुर्भाव है। इसलिए आप सब इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि वो हमारे ऋषियों की देन है। कई बार जब योग की बात आती है तो सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये हम ही कहते हैं। हम चिंता सिर्फ मानव की ही नहीं करते हैं, मानव से इतर हम प्राणी मात्र की चिंता करते हैं। हमें सबकी चिंता है, सबकी सुख की अभिलाषा है, सबके आनंद की चाहत है। हमने तो इसीलिए कि आपो देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, हमने सबको देव माना। देव मानने का अर्थ ये नहीं है कि हम आरती लेकर के सब उनकी आरती उतारें। देव मानने का मतलब यह है जीवन में सुख चाहिए, उनका सदुपयोग करो, उनका सम्मान करो। ये हमारी संस्कृति का मूल है, यही सनातन है। सनातन की प्रवृत्ति सुख का साधन है, सनातन से विमुखता दुख का कारण है। और इस तरह के जो आयोजन है हमसे, हमारे मूल से जोड़ने का काम करते हैं। तो आइए हम सब इस तरह के आयोजन से अपने मूल से जुड़े। इसको मूल से जोड़ने का जो कार्य और प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये अभियान चला है, यह अभियान निरंतर बढ़ता रहे। ये हमारी मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं, और हम हमेशा आपके साथ हैं। आदरणीय बहन जी ने कहा हम पूरी पतंजलि की टीम लेके आ गए, आप जहाँ कहोगे वहीं लग जाए। हम चाहते हैं ये गोवा, ये सुंदर स्टेट, सुंदर प्रांत है। ये सिर्फ क्यों गोवा को समुद्र के किनारे भगवान ने, प्रकृति ने दिया, घूमने के लिए लोग आए। मैं अभी सुबह सुबह कह रहा था कि लोग 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आते हैं। जैसे केरला में जाते हैं तो नॉर्मली, पीछे अभी एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था
उसमें वो कह रहे थे कि लगभग 15 दिन 18 दिन लोग ठहरते हैं। यहाँ का एवरेज रेशो निकालोगे आप तो मुझे लगता है 2-3 दिन निकलेगा। तो यदि आप वेलनेस को आयुर्वेद को बेहतरीन जोड़ देते हैं तो जो पर्यटक आया है यदि उनको रुकने का टाइम यदि दुगुना आप कर देते हैं तो दुगुना प्रांत की आय की वृद्धि होगी। यहाँ से सिर्फ पाश्चात्य का प्रभाव नहीं, यहाँ से सनातन का गौरव भी लेकर के वो आदमी जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और इस क्षेत्र में आपके माध्यम से वो काम हो सकता है क्योंकि आपके हृदय में सनातन अवस्था है, उसका गौरव का भाव आपके मन में है, वो स्थापित हो सकता है। खुशी की बात है आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब राजेंद्र जी हमें मिले, ये बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं, पद्मश्री हैं, पर इनके मन में जो भाव है, अभी हम काफ़ी रिसर्च के लिए भी साथ में काम भी करने वाले हैं, बात हो चुकी है। आप कह रहे थे कि कैंसर कम है गोवा में, खुशी की बात है, पर मैंने सुना कि डायबिटीज कुछ ज़्यादा है, तो यह दुख की भी बात है क्योंकि हमने सुना कि लगभग यहाँ पर हर चौथे व्यक्ति को डायबिटीज है और दूसरे तक की होने की संभावना है। तो खुशी भी मनाइए पर सावधान भी हो जाइए, ये दोनों ही बातें हैं क्योंकि हम नकारात्मक बात नहीं करते हैं पर हम आपको सजग जरूर करते हैं, सावधान जरूर करते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिए। योग सहज प्राप्त है श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से। पूज्य स्वामी जी ने पूरी दुनिया में आज 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक स्वामी जी ने योग पहुंचाया है। क्या आपको पता है कि सारी वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है, यदि सारी धरती में यदि कोई ऐसा शब्द है जो उसका बेसिक मीनिंग सबको पता है तो योगा शब्द है। क्या आप किसी को बोलो कि योगा मीन्स तो ये कह देगा श्वास लेना छोड़ना और 2-4 टांगे उठाना, इतना तो सबको पता है। ऐसा कोई दूसरा वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग सारी धरती को पता हो। तो जिसका सारी दुनिया को पता चल गया और आप बेखबर रहें, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप योग करिए, प्राणायाम करिए। और योगा की हमारी टीम है, बहुत बढ़िया टीम है। माननीय मुख्यमंत्री जी काम लेते हैं, इनसे और काम ले लो आप, ये सब सेवा के लिए तैयार है हमारी भाई बहन। तो यहाँ बढ़िया सेवा का योग का काम चल रहा है। तो इसीलिए जो शक्ति है सनातन की, हमारी परंपराओं की, तो जो मधुमेह है, डायबिटिक जैसी जो बीमारियाँ वो रिवर्स हो सकती हैं आराम से। पतंजलि उसका बेहतर उदाहरण और मॉडल है। तो आप प्रतिदिन योगाभ्यास से प्राणायाम करिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस योग को यूएनओ में ले जा करके उसको प्रामाणिकता का एक तरह से स्टैंपिंग करने का, ठप्पा लगाने का काम किया। ये भी एक बड़ा काम था क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हम करते हैं पर शायद बाहर दुनिया करती है कि नहीं करती है। अरे भाई, दुनिया कर रही है। अब तो चेतो, अब आंखें नहीं खुलेंगी। मैं आपको कहता हूँ आयुर्वेद के ऊपर भारत से ज़्यादा बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। और एक और आपको सावधान करके जाता हूँ, अभी योग के ऊपर विदेश के अंदर कुछ संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं कि वो ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कहने वाले हैं कि योगा का जो उद्गम है, योगा की जो भूमि है भारत नहीं है, योग तो यूरोप से पैदा हुआ है। तो यदि आप सोते रह गए ना, जैसे हमारे बासमती, हमारे नीम, हमारे हल्दी ये पेटेंट कराने के पीछे लग गए ना, ऐसे कहीं आप हाथ मलते नहीं रह जाना कि दुनिया योग कर करके लाभ ले ले, पेटेंट ले ले और फिर हम फिर बाद में फाइटिंग करते फिर। इसके लिए पहले ही सजग होना होगा। और इस तरह के आयोजन में जब एक विधा के, एक भाव के हजारों लोग इकट्ठे होते हैं तो सबकी ऊर्जा भी बढ़ती है, सबके मन में उत्साह भी बढ़ता है, सबको प्रेरणाएँ भी मिलती हैं। यहाँ पर बहुत सारे सत्र होंगे, सेशंस होंगे, अलग अलग एक्सपर्ट्स आपको बहुत कुछ बताएंगे। यहाँ से सीखिए, समझिए, समझकर के जीवन में उतारने का प्रयास भी करिए। जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन विधाओं से जुड़ना। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि हम समझें तो सही। देखिए, आपको बोध होता है कि आग में हाथ देने से हाथ जलेगा, कोई हाथ देता है क्या? यदि हमें बोध हो जाए कि हम यदि योग और प्राणायाम करते हैं तो हम निरोग रह सकते हैं, तो कोई बीमार रह सकता है क्या? यदि आप बीमार हैं तो विश्वास में कहीं कमी है, तो आज यहाँ से उस विश्वास को अपने अंदर धारण करो, उस विश्वास को यहाँ से लेके जाओ। ये जो जगह है, ये जो पवित्र, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये नाम पर अवस्थित यह
प्रांगण है, ये जो ऑडिटोरियम है ना, यहाँ से आज यही संकल्प लेकर के आप चलिए कि अब बहुत हो गया, जितने दिन छूट गए, जो रह गए, जहाँ पहुँच गए, कोई बात नहीं, अब आगे हम इन चीज़ों से वंचित नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ, अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्त भगवत्तरः, कि मेरा हाथ भगवान है, यानी मेरा शरीर देह यह देवालय है, यह शिवालय है, इसकी पवित्रता को बनाना, इसकी चेतनता को उच्च स्तर पर पहुंचाना मनुष्य का कार्य है। भोगार्थ भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, यह भोग के लिए देह है, पर सिर्फ भोग के लिए नहीं है, ये अपवर्ग के लिए भी है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यमुत्तमम, इसका अर्थ यही है दुनिया में कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो सेहत बनाओ। जिंदगी भर हम कमाने में लगते हैं, सेहत को खोते हैं, फिर जो कमाया होता है उसको सेहत को सुधारने के लिए लगाते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप थोड़े से पहले से सजग और जागरूक हुए तो। बीमार हो करके हॉस्पिटल जाना मजबूरी है, कौन जाना चाहता है, परंतु बुद्धिमत्ता यह है कि आप बीमार ही ना पड़ो, इसके लिए उपाय करो। इसके लिए योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा है। आयुर्वेद के ऋषि कभी नहीं कहते हैं कि तुम बीमार पड़ोगे तो अब तुम आयुर्वेद का सेवन करना। वो कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, पहला मंत्र। फिर आतुर से रोग प्रशमनम तो बाद में है, कि पहले जो तुम जैसे भगवान ने कितना सुंदर आपको बना करके उस धरा पर भेजा था, कितने अच्छे थे आप, वैसा ही अपने आप को बना करके रखें। भगवान ने तो अच्छा बनाया था, बिगाड़ा तो हमने स्वयं ने अपने आप को है, इसलिए हम अपने आप को अच्छा रखें, ये आयुर्वेद सिखाता है। अभी आदरणीय डॉक्टर साहब कम्बिनेशन की बात कर रहे थे, हम इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन की बात अब पतंजलि से बड़े स्तर पर पूरी दुनिया के लिए उठ चुकी है। पैथी का जो विरोध नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ पर हम आयुर्वेदा और वेलनेस की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम कोई एलोपैथी की महत्ता कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये कदापि नहीं है। पैथियों का अपना सामर्थ्य है, पैथी की अपनी आवश्यकताएं हैं, परंतु वो पैथियाँ जब हमारे पेट में जाती है ना, पैथी नहीं रहती है, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री काम करती है, ये बात तो सही है। इसलिए हर विधा में रिसर्च भी जरूरी है। तो पतंजलि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में आयुर्वेद को स्थापित करने के लिए बड़ा काम कर रहा है। यह भूमिका को हमें निर्वहन करना है। और जहाँ पर भी साधन के लिए देखिए, जब हम 90% बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जो केयर की जो बात आती है ना, वो हम योग और नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से बेहतरीन कर सकते हैं। और क्रॉनिक डिजीज में भी बेहतरीन योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी काम करते हैं। तो इसलिए इमरजेंसी के लिए, क्रिटिकल के लिए आप एलोपैथी को रखिए। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, ये संदेश भी जाना चाहिए, आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हमारे पद्मश्री राजनाथ जी, कि हम आयुर्वेद और योग वगैरह को अल्टरनेटिव मेडिसिन क्यों कहते हैं? वो तो जीवन का पार्ट है। अल्टरनेटिव तो एलोपैथी को कहना चाहिए कि वो इमरजेंसी की आवश्यकता है। तो ये संदेश भी आप यहाँ से लेकर के जाइए, तो अपने जीवन को ठीक करो। अल्टरनेट कहते ही हमारे को ना उदासीनता आ जाती है, वो चेतनता खत्म हो जाती है, हम लापरवाह हो जाते हैं। वो जीवन का मुख्य अंग समझ करके जाओगे ना तो लापरवाह खत्म हो जाएगी, लगेगा ये तो मेरा मुख्य अंग है। जैसे आपको सुबह उठ करके नाश्ता करना ज़रूरी है, वैसे सोचो सुबह उठ करके आपके लिए योग करना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, तो उसके में थोड़ा सात्विकता भी हो तो और बेहतर है। तो ये प्रतिदिन ज़रूरी है। अब ऐसा सोचें, हम कभी कभी कहते हैं कि बद परहेजी सप्ताह में 1 आध दिन करने से चलो चल जाता है आयुर्वेद से, पर यही तो उल्टा है। 7-6 दिन बद परहेजी करता है, आदमी सोचता है एक दिन आज हम सात्विक खाएंगे, आज नॉनवेज नहीं खाएंगे, आज तले में नहीं खाएंगे। उसको उल्टा कर दो, 6 दिन सात्विक हो जाओ, एक दिन तले भुना खा लो, तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो यह एक सुंदर प्रयास के लिए मैं भूरी भूरी आके इसके लिए मंगल कामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और कल प्रातःकाल परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी भी आएंगे, आप सब आना। योग कहाँ कराने वाली है बहन जी? सुबह योग सेतु जहाँ है वहाँ पर योग होगा, तो सब आना।
जो बाहर से आए हैं घर वालों को तो नहीं बुला सकते, पर जो गोवा के हैं लोकल हैं कम से कम अपने साथ 5-5, 10-10 लोगों को लेकर के आना। तो अच्छा मौका है और हम भी यहाँ कल भी हैं, हम आनंद लेंगे, परसों तक है, आप सब आनंद लीजिए, सबको बुलाइए। और मैं कहता हूँ कि इस आयोजन से, देखिए मीडिया के बंधु भी यहाँ पर हैं, कई बार होता है कि ये आयोजनों से क्या होगा। मैं कहता हूँ इस आयोजन से यदि 1000 लोगों को डायबिटीज होने से बच गए, 500 लोग कैंसर होने से बच गए, 500,000 लोग हार्ट डिजीज होने से बच गए, तो कितना रेवेन्यू बच गया। ऐसे आयोजन तो हर रोज होने चाहिए, यानी कि आप लाखों खर्च करके प्रांत का करोड़ों रुपया बचा रहे हैं। इससे बेहतर सुंदर और कोई आयोजन नहीं हो सकता। मेरी बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, मंगलकामनाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत मेरा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। मैं अभी सबको फिर एक बार इस इंडिया इंटरनेशनल आयुर्वेद एंड वेलनेस एक्सपो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आचार्य बालकृष्ण जी ने जो सही कहा और जो उन्होंने सही मार्गदर्शन किया, क्योंकि इस तरह के एक्सपो में सिर्फ हम हेल्थ और वेलनेस को बढ़ावा नहीं देते हैं, बल्कि हम एडिशनली हमारी जो कुछ हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं हेल्थ सेक्टर में वो कम कर देते हैं। ये बात सही है। दैट्स व्हाई वी वांट टू टेक द प्रिकॉशंस नाउ ओनली एंड द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। ये मैसेज उन्होंने लाउड और क्लियर दे दिया। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ हमारे डॉक्टर बड़वे जी फ्रॉम द टाटा हॉस्पिटल। उन्होंने सबसे पहले और बहुत ही अच्छी तरह से कहा कि इंटीग्रेशन के सिवा अभी कोई पर्याय नहीं है और इंटीग्रेशन से ही हम अच्छी तरह से कैंसर और दिस टाइप ऑफ बाकी डिसीजेज हम बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर बड़वे जी, जब आप यहाँ पे आके हमें बहुत ही आपने ना बल्कि मैसेज दिया, क्योंकि आयुर्वेदा और आयुष के सभी डॉक्टर्स का आपने जो मोरल करेज बढ़ा दिया है। सही में रिसर्च ओरिएंटेड मेडिसिन अभी जो हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं और वेलनेस और आयुर्वेदा में इनके लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी मैसेज आज आपने सभी के बीच में दे दी है। मैं और एक बात जरूर कहूँगा कि आचार्य बालकृष्ण जी ने जैसे कहा कि योगा शब्द बाबा रामदेव ने सभी लोगों तक पहुँचाया, लेकिन दूसरी बात सही है कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे योगा डे बोल के स्टैम्प किसी ने किया, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने योगा डे बोल के पूरे देश भर में से इसको एक्सपोजर किसी ने दिया, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज यहाँ और पूरे देश भर में जितने सारे आयुष डॉक्टर्स के इस तरह के सेमिनार्स और आयुर्वेदा के डॉक्टर्स नॉट ओनली इन इंडिया बट एट ग्लोबल लेवल पे जितने सारे सेमिनार और आयुष डॉक्टर्स के लिए जो प्रेस्टिजियस मान प्रैक्टिस करने का जो मौका मिल रहा है, इट इज ओनली आफ्टर द 2014 when the Honorable Prime Minister has recognized the Ayush doctors at on the global level. मैं इस 3 दिन के इस सेमिनार को बहुत बहुत आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पता है कि डिफरेंट आप लोगों ने जो पेपर्स यहाँ पे सबमिट किए हैं, यहाँ पे रिसर्चर्स और जहाँ पे ट्रेनिंग्स और डिफरेंट सेशन यहाँ पे जो होने वाले, इनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पहले गोवा वेलनेस आयुर्वेदा एंड योगा पॉलिसी 2026 ये आज हमने लॉन्च कर दिए। तो इससे आगे आयुर्वेदा के सभी डॉक्टर्स या आयुष के सभी डॉक्टर्स के लिए, चाहे वो आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी, फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी, इनके लिए इट इज़ वेरी प्रोस्पेक्टिव। गोवा में इस तरह से इस पॉलिसी के अंतर्गत यू कैन स्टार्ट यूर वेलनेस प्रैक्टिस, और उस वेलनेस प्रैक्टिस की बहुत ही आज जरूरी है। मुझे लगता है आज तक गोवा में जितने सारे लोग सन, सैंड और सी के लिए आते थे, मैं तो कहता हूँ कि इससे आगे द पीपल विल कम फॉर द वेलनेस, और वेलनेस ट्रीटमेंट लेने के लिए गोवा में लोग जरूर आएंगे। तो ग्लोबली ऑलरेडी इतने सारे लोग आते हैं, उन्हें हमें टैप करना चाहिए और आप लोग करेंगे, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। I wish to begin with on the personal note. I am an Ayurveda practitioner myself, and I firmly believe in the power of the Ayurveda, not just as a system of medicine, but a way of life. Ayurveda teaches us the balance between the body and mind, between the human beings and the nature, between progress and sustainability. I believe in today's fast-paced world, the wisdom is not optional, it is essential. Ayurveda is one of the Bharat's biggest contribution to humanity. It does not merely
treat the illness, it protects the health. In our ancient texts, the swasthya swasthya rakshanam, aturasya vikara prashamnam. It protects the health of the healthy and it helps the disease. In the world struggling with the lifestyle disorder, stress and imbalance, the Ayurveda offers the answer that is natural, affordable, preventable and holistic. Goa is already known globally for its natural beauty, biodiversity and spiritual harmony. But today, we are conscious shaping the new identity for the Goa as a global wellness destination. The wellness tourism is eco-friendly, people-centric and sustainable. It respects our land, our forest, our coastline and our culture. This Expo and Summit is a strong step in that direction. Goa is proud to host the growing network of the Ayush centers offering the Ayurveda, Yoga, Siddha, Unani, Homeopathy, Naturopathy and Panchakarma and also the physiotherapy centers. These centers are healing the people and are also creating the employment, entrepreneurship and global recognition for Goa. With the establishment of the All India Institute of the Ayurveda, AIA in Goa, we are scaling our Yuva Shakti to becoming the world class for the Ayurvedic practitioners. This gives our youth the quality education, the global exposure and meaningful careers rooted in the Indian knowledge system. At the same time, it gives patients access for the holistic and personalized healthcare. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has given the world the vision of life. It is a lifestyle for environment. Ayurveda naturally aligns with this vision. It teaches us to live in a harmony with nature, consume responsibly and care for both body and planet. The Fit India movement, the Yoga for All and preventive healthcare are the national movement which is launched by Honorable Prime Minister. Indian philosophy reminds us the true wellness being in mind. As our scripture says, Manaiva Manushakam Karma Bandha Mokshayama. The mind is the cause of both the bondage and the liberations. From the Bhagavad Gita to the Manache Slok of the Samartha Ramdas Swami, our tradition has always placed the mental well-being at the center of life. The Ayurveda understands this deeply. I wish to assure the stakeholders and practitioners, researchers, investors, entrepreneurs that the Government of Goa will stand firmly with you. We will support the nature-friendly wellness project, Ayurveda-based research and innovation, the skill development and the training centers, and responsible wellness tourism. I appeal to those with the land, resource, the vision of our invest in the wellness and health. I am happy to announce that the India International Ayurveda and Wellness Expo and Summit will be in the annual state-sponsored event henceforth. Together with the Goa Council of the Ayurveda and allied institutions, we will build the Goa as a global hub for the holistic wellness. To our students and young professionals, the world is rediscovering what India always knew. Your future lies in the knowledge system that were rooted at globally, traditionally, and scientific.